आपके इन्वेस्टमेंट से अगर कुछ हिस्सा निकाल के इंश्योरेंस कवर लिया पड़े तो हमारे ख्याल से ये बेटर होगा कि आप खुद इन्वेस्टमेंट कर लें म्यूचुअल फंड में और खुद चुन लें वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि आपके लिए सबसे कॉस्ट इफेक्टिव हो और जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे। तो ये इन दोनों को आप अलग अलग तरीके से चुनाव करें, ऐसा मेरा मानना है। मैंने कहा था आपसे नंद गोपाल साहब कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत परेशान है आपसे। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मेरे पास ये विकल्प है कि मैं एक म्यूचुअल फंड खरीदूं और टर्म इंश्योरेंस ले सकता हूं जिससे मेरा रिस्क कवर हो जाए, या अब जैसे म्यूचुअल फंड ने इनबिल्ट एसआईपी के लिए कवर डाल दिया कि अगर बाय चांस मेरी डेथ हो जाए तो मेरे जो एसआईपी के कंपोनेंट है वो कवर हो जाएगा, लेकिन यूलिप का क्या ऐसा एक फायदा है जो आप मानते हैं जिसके लिए आकर्षित होना चाहिए एक निवेशक को? Okay, it's just like Austin where you want to see your have your left eye or right eye. I think you need to have both eyes. To my mind, I mean you need to have for proper financial vision. You need to have your mutual funds. You need to have unit-linked plans also. Whether unit-linked plans or life insurance. Life insurance, do not look at it only as a protection plan. It is a long-term financial plan. If you look at it as a long-term financial plan perspective, any financial plan, an ideal financial plan, must have some 3 or 4 basic features. It should be in position to help you to save in a regular small installments, which life insurance plan does it. It should be in position to give you very tax efficient returns, which a life insurance plan does it. It should give you an upside and it should cover you for the downside. Most of the life insurance plans cover you for the downside. They have built-in guarantees. All the death benefits are guaranteed death benefits, and no other financial institution can offer the kind of a guaranteed benefits. The other thing is upside is also available. Through the unit-linked plan route, now we are saying that it is possible for you to participate in the upside also. Previously, the upside was not available because only a predetermined bonus was given. In case of mutual fund, then the downside cover is not there. Downside cover, for example, suppose in the unfortunate event, a person who subscribed to only 3 or 4 installments of the SIP and then later on he passes away, he will not get the death benefit beyond whatever the SIP insurance cover which is there, which is not sufficient as I mentioned. You need to have a much longer cover. It is possible, like you are saying, more than actually protection cover. Now there is need for health, there is need for critical diseases to be covered. So there is health insurance requirement, there is an annuity requirement. So all these things can be added as an additional riders. And most importantly, it is much more tax efficient plan. So instead of actually trying to really lose or focus on the somewhat, I mean, meaningless debate of mutual funds or unit-linked plans. आप कह रहे हैं दोनों लीजिए? दोनों लीजिए, yes. And दोनों से आप भी खुश, ये भी खुश. Sudesh will be able to sell both. बहुत खुश. Yeah, definitely. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं म्यूचुअल फंड इनसे लूं और केवल इंश्योरेंस आपसे लूं. नहीं, ऐसा नहीं. No, I think you need to have both. सुदीप, मेरा विवेक राय इसमें है कि पहले एज ए निवेशक आपको डिसाइड करना आप क्या चाहते हैं. आप क्या कोशिश कर रहे हैं मार्केट में निवेश करने का या इंश्योरेंस कवर लेने का. अगर आपका इरादा यही है कि आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपसे कितने देर के लिए निवेश करना चाहते हैं. अगर आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं 10 साल के नीचे के लिए, आपका होराइजन 10 साल के नीचे है, तो स्टिक टू म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स. अगर आपका होराइजन है 10 साल के से ज्यादा, कि आप 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, लड़की की शादी करानी है, लड़के को कहीं पढ़ाई के लिए भेजना है, घर बनाना है रिटायर करने के टाइम में, तो यूलिप लीजिए. ये एक तो सीधा हो गया. दूसरा मुद्दा आपका है इंश्योरेंस का. अगर आपका टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट टर्म है और आपको उसके साथ इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है, तो आपको क्या लेना चाहिए? टर्म पॉलिसी लेना चाहिए. आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, टर्म पॉलिसी ले लीजिए. अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन है 10 साल से ज्यादा, आप यूलिप ले लीजिए. बस सीधा सिंपल हिसाब. बात खत्म हो गई यहीं पर. आप अंकल खरीद. ये म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरा भी अनुभव है, उसमें सबने हिस्सा लेना ही चाहिए. लेकिन वो जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उस वक्त लेना चाहिए या उससे बेटर कौन सा वे होता है, वो आप कृपया बताइए. तो देखिए, म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करें तो डिविडेंड के नजदीक करें, इसका कोई महत्व नहीं है. म्यूचुअल फंड डिविडेंड क्यों देती हैं? कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नजरिए से अपना इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में कर देते हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़रूरतें भी होती हैं. जैसे सालाना ज़रूरतें हुई कुछ फेस्टिवल के समय में, तो उस समय अगर उनको कोई लमसम रिटर्न मिले अपने इन्वेस्टमेंट से, तो वो उसे लेके बहुत खुश होते हैं. तो इसलिए अगर आप देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है उसके 2 ऑप्शन हर समय मिलेंगे आपको, ग्रोथ ऑप्शन एंड द डिविडेंड ऑप्शन.
इस कंटेक्स्ट में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो कि हमारे परिवार से संबंधित है। हमारे पिताजी के एक कलीग जो इक्विटी बाजार में बहुत पैसा लगाया करते थे, उनके पोर्टफोलियो में ब्लू चिप शेयर्स थे, रिलायंस, लार्सन, इस तरह के, हिंदुस्तान लीवर। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी जितनी इस तरह की शेयर की इन्वेस्टमेंट थी उसमें का 60% हिस्सा बेच के उन्होंने पैसा लगा दिया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। हमने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप तो बहुत अच्छा आपने पोर्टफोलियो बनाया है। बट उन्होंने कहा कि जब हम इन सब शेयर्स में पैसा लगाए थे, उनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 2% या 1% या 3% है, जो कि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उसको हमने लगा दिया इक्विटी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर हम लगाए, और अगर आप देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो डिविडेंड रहता है करीब करीब 10-12% यील्ड के आसपास वो डिविडेंड देते हैं। अदरवाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का डिविडेंड देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह का रेगुलर रिटायर्ड आदमी को इनकम मिलता रहे फ्रॉम डिविडेंड, इसके कारण उन्होंने अपने ब्लू चिप शेयर्स का पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा दिया, जो मेरे लिए एक इनसाइट है। क्योंकि एज अ फंड हाउस हम लोग अपने हर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में साल में एक बार कोशिश करते हैं कि एक डिविडेंड दें, ताकि ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स होंगे जिनकी की आशा होगी कि उनको उनका लंप सम जो है वो तो ग्रो करते रहे, लेकिन साथ में उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बुक होके ऑटोमेटिकली उनके पास डिविडेंड के रूप में आ जाए। लेकिन आप ये कह रहे हैं, जैसे जो इनका सवाल है कि मैं टाइमिंग देखूं डिविडेंड की, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं डिविडेंड एट द एंड ऑफ द डे जो आपका पैसा है वही आपको वापस आ रहा है। आपने पैसा डाला, इन्होंने उस पैसे को बढ़ाया और फिर उसका एक हिस्सा आपको वापस कर दिया। तो ये जरूरत पे निर्भर है। अगर आपको मंथली चाहिए या कुछ पैसे वापस देखना चाहते हैं आप, इनके शायद जो पिताजी के कुलीग थे उन्होंने ब्लू चिप्स के जरिए पैसे पहले बड़े बना दिए, फिर जब उनको लगा कि अब मैं रिटायर हो गया और मुझे मंथली या रिपीटेड रिटर्न्स चाहिए, कुछ पैसे वापस आने चाहिए घर में, तो उन्होंने डिविडेंड का ऑप्शन दिया। तो ये टाइमिंग करना डिविडेंड के टाइम में या क्या करें, वो उससे कोई मतलब नहीं। आप लोग गुरु बैठे हैं और गुरु का यही गुरु तो आज एक दिन आए हैं ना, रोज तो नहीं रहेंगे आपके साथ। तो कब तक मैं मेरा पैसा होल्ड करके रखूं, कब तक मैं इन्वेस्टमेंट के लिए 3 साल बाद हम फिर आएंगे, तब तक आप होल्ड करके रखें। ठीक है।